Hello, it's Dr. Sunita Sangwani here. Again, welcomes you all in my botany classes. Today we will cover the topic transport of water, ascent of sap in plants, part 2. In the last part, we studied about the root pressure theory and vital theory. The remaining physical forces theory we study in this video. Physical forces theories. These theories are based upon the hypothesis that dead cells are responsible for the ascent of sap, and these theories are called physical forces theories, which depended upon the some physical forces present in these dead cells of the xylem. Physical forces theories are further of 4 types: imbibition theories, atmospheric pressure theory, capillary theory, and cohesion theory of Dixon and Joly. First is imbibition theory. As the name suggests, here the main phenomenon is imbibition. This theory was proposed in 1968 and then supported by Sachs in 1878. According to this theory, ascent of sap occurs due to the imbibition activity of the cell wall of xylem elements. Means according to this theory, imbibition of water takes place by the xylem cell wall. But this theory is strongly discarded because movement of ascent of sap is through the lumen of the xylem, not through the cell wall. So there is no basic in this theory. So this theory is strongly discarded due to imbibitional activity of cell wall. Next theory is capillary force theory. This theory was proposed by Bockham in 1809. According to this theory, tracheids and vessel of the xylem act as a capillary tube. Capillary tube का function हमने पहले भी discuss किया है. And ascent of sap is partially raised due to the capillary action of these tissues. Means these tracheids and vessels of xylem act like capillary tube. And capillary tube में क्या होता है, जब भी हम उसको किसी भी solution में या किसी भी water में put करते हैं तो उसमें एक level तक वो solution या water क्या है, rise up हो जाता है. तो इसी टाइप से जो ट्रैकेट्स और वेसल्स हैं जाइलम की, वो इन कैपिलरी के टाइप से बिहेव करेंगी और उसमें भी जो वाटर है वो राइज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कैपिलरी फोर्स थ्योरी. बट देयर आर मेनी ऑब्जेक्शंस टू दिस थ्योरी बिकॉज फॉर ए कैपिलरी एक्शन ए फ्री सरफेस इज required that is not available in the tracheids and vessels of the xylem. Magnitude of capillary force is very low. Due to this, water can rise to a very low height, not up to taller plants. So this is also failed here. The taller plant should have narrow elements, while small plant have broader elements. According to this theory, जो taller plants है उसके अंदर elements narrow होने चाहिए और जो broader plants हैं, जो water circulating elements हैं, जो xylem और vessels हैं, वो wide होने चाहिए. जबकि अगर एनाटॉमिकली हम इस चीज को स्टडी करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि टॉलर प्लांट में नैरो एलिमेंट्स, नैरो जाइलम, ट्रैकेट्स और वेसल्स होंगे और जो स्मॉलर प्लांट्स हैं उसमें ब्रॉडर वेसल्स और ट्रैकेट्स प्रेजेंट होंगे. सो दिस थ्योरी इज आल्सो फेल्स हियर. नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी. एट द नेम सजेस्ट, द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर that is created by the transpiration from the leaf transpires, and due to this which reduces the pressure in the xylem cell. xylem cell pressure reduce हो जाएगा, उस प्रेशर का जो गैप आ जाएगा, प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, उस गैप को फिल्ड करने के लिए जो जाइलम के जस्ट नीचे वाटर होगा वो उसमें मूव करेगा ड्यू टू डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इस टाइप से अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लीफ में प्रेशर क्रिएट होगा, लीफ में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, उसकी वजह से जाइलम से जो वाटर है वो लीफ में मूव करेगा, फिर जो जाइलम है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, उसकी वजह से जाइलम के नीचे से जो वाटर है वो जाइलम के अंदर मूव करेगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेन बेसिस इज डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसपिरेशन ऑफ द लीफ. बट देयर आर वेरियस ऑब्जेक्शंस टू दिस थ्योरी. द फर्स्ट इज
Due to atmospheric pressure, water can raise only up to a certain height, not beyond that. Then what happens in sequoia and eucalyptus plant that are very tall plants? तो उसमें water कैसे move कर सकता है according to this theory? Pressure of green surface at lower end is required for the atmospheric pressure to upper end. So these due to this objection, this theory is also discarded. The final transpiration pull cohesion of water theory. Till now, this is most acceptable theory. This theory was originally proposed by Dickson and Joly in 1894. After that, many scientists still now work on these theories. This theory has main three features. On the basis of this is proposed. First is strong cohesive forces of water molecules. That is one of the most important basic of this theory. That water molecules have strong cohesive forces. Continuity of water column in the plant. जो water column है plant में वो continue रहता है without involving any air bubbles. And tension of water column due to transpiration pull. एक tension create हो जाता है water column में जो transpiration है उसकी वजह से. फर्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. एंड हम सभी को पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बट जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट हो जाते हैं तो वो कोवलेंट बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. तो ऐसे ही वाटर में है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो इसी की वजह से उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से, जिनको ब्रेक नहीं किया जा सकता. तो यही जो इसके स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं यही इसकी दो प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेज एंड कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम इन प्लांट्स. क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता तो जो वाटर कॉलम की कंटिन्यूटी है वो भी रहती है. दूसरा जो कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है जाइलम के अंदर जो पिट्स प्रेजेंट होती हैं वो इसके अंदर एयर बबल्स नहीं आने देती. क्योंकि जितना भी अगर उसके अंदर डेफिशिएंसी होती है तो वो बीच बीच में जो वाटर की सप्लाई करती रहती है पिट्स के थ्रू, तो वो भी इसमें हेल्प करती हैं टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम. थर्ड है टेंशन ऑफ ऑन द वाटर कॉलम ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल. ट्रांसपिरेशन पुल, जैसे ही ट्रांसपिरेशन कहां से होगा? लीफ से होगा. तो लीफ के थ्रू जब ट्रांसपिरेशन हुआ तो वाटर रिमूव आउट हो गया, तो उसकी वजह से क्या यहाँ पे एक डीपीडी क्रिएट हो गया, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्रिएट हो गया. और उस डीपीडी की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ का जो वाटर था वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में चला गया. अब यहाँ पे जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है वो हाई हो गया एज कंपेयर टू द मीजोफिल सेल्स. जो ये मीजोफिल सेल्स हैं और जो गार्ड सेल्स हैं, मीजोफिल सेल में जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट है वो कम हो गया है और गार्ड सेल में ज्यादा है. तो क्या होगा, जो वाटर है मीजोफिल सेल से वो कहाँ पे मूव कर जाएगा? गार्ड सेल्स में मूव कर जाएगा. तो अगर गार्ड सेल में मूव कर गया तो फिर कहाँ पे डीपीडी क्रिएट हो जाएगा? मीजोफिल सेल्स में एज कंपेयर टू द जाइलम सेल्स. तो मीजोफिल सेल्स में फिर वाटर जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट है वो हाई है एज कंपेयर टू द जाइलम वेसल्स. तो मीजोफिल सेल्स कहाँ से वाटर लेंगी? जाइलम सेल से वाटर को एक्सेप्ट करेंगी. फिर जाइलम सेल में डीपीडी क्रिएट हो गया तो जाइलम सेल्स जो एंडोडर्मिस है और जो रूट हेयर्स हैं वो फिर उसमें वाटर एब्जॉर्ब करेंगे क्योंकि जो सॉइल से उसका डीपीडी हाई है. तो इस टाइप से जो ट्रांसपिरेशन, क्योंकि फर्स्ट जो प्रोसेस हुई है उसमें वो क्या हुई है? ट्रांसपिरेशन हुई है. तो इस ट्रांसपिरेशन की वजह से जो पूरा वाटर कॉलम है, जो पूरा मीजोफिल सेल्स हैं, गार्ड सेल है, मीजोफिल सेल है, जाइलम है, कॉर्टिकल सेल्स है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड अप टू रूट हेयर, एक टेंशन क्रिएट हो गया, एक फोर्स क्रिएट हो गया है वाटर कॉलम में जो रिस्पॉन्सिबल है इसके अपवर्ड मूवमेंट के लिए. As transpiration pool theory is most acceptable, but still there are some objection in it. There is lack of correlation between the rate of transpiration and ascent of sap. Ascent of sap and transpiration rate are not fully correlated with each other. As there is, if there is 100% relative humidity, अगर relative humidity 100% है एटमॉस्फेयर में, उस टाइम पे ट्रांसपिरेशन रेट इज वेरी लो, मीन्स स्टॉप हो जाता है एक टाइप से. क्यों? क्योंकि उसके अंदर डीपीडी क्रिएट नहीं होता.
बाहर भी उतना ही वेपर्स प्रेजेंट है और लीफ के अंदर भी उतने वेपर्स प्रेजेंट है, तो जो ट्रांसपिरेशन है वो लगभग स्टॉप हो जाएगा। बट फिर भी क्या है, बट इवन देन द वाटर रीचेज द टॉप ऑफ द प्लांट। ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, फिर भी जो वाटर है वो प्लांट के जो टॉप है, जो बिल्कुल एंडिंग है प्लांट की, वहां तक पहुंच रहा है। तो उस टाइम पे जब ट्रांसपिरेशन हो ही नहीं रहा है 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, तो तब कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ये अभी भी पेंडिंग है ये। तो इसीलिए कोई भी अभी तक एसेंट ऑफ सैप पे फुल एंड फाइनल नहीं है थ्योरी, तो स्टिल इट इज वर्किंग ऑन। थैंक यू।